climate change is severely impacting Pakistan, resulting in slow onset and sudden extreme weather events, which frequently disrupt human and physical capital. It is undermining natural resources, resulting in water insecurity and increasing socio-economic vulnerability. Frequent devastating floods, droughts, and gulfs are causing billions in losses, leaving millions homeless and deepening poverty. Its most recent example is the mega floods of 2022, which submerged 1/3 of Pakistan, an area larger than the UK, affecting 33 million people. क्लाइमेट चेंज की वजह से ये ग्लेशियर पिघलते हैं और ये बहुत बड़े पैमाने पर तबाही फैलाते हैं। सैलाब से वजह से यहाँ पे फसल भी नुकसान होती है, रोड भी नुकसान होती है, किसी के घर पे लेके गई है। माली नुकसान तो वैसे ही होता है सैलाबों में, किसी का जानी नुकसान भी हो जाता है। माल मवेशी तो ऐसे ही मरता रहता है, पानियों में तबाह हो जाता है। Brave is building resilience against climate change by helping communities anticipate, adapt to, and withstand climate shocks. It is strengthening communities and institutions, supporting at-risk households in climate adaptation, and collaborating with private and public sectors for climate action. In Pakistan's disaster-prone context, Brave is safeguarding long-term resilience gains through timely humanitarian responses, building back better, and setting pathways for resilient recovery and resilience building. Brave responded to the 2022 and 2024 floods in 12 of the worst affected districts across Pakistan, supporting 149,508 families with emergency shelters, drinking water, non-food items, and hygiene kits. It has also provided multi-purpose cash assistance to the most vulnerable families. The program has reduced suffering of flood-affected population through timely provision of emergency shelter kits, non-food item hygiene kits, and cash for work opportunities. Hygiene kits reduce the risk of waterborne diseases and other health issues. Cash for work provided flexibility to beneficiaries to meet their basic needs when their savings and assets were depleted. Beyond immediate relief, Brave is helping rehabilitate irrigation channels, hand pumps, latrines, pedestrian bridges, paths, schools, and health facilities, following the Build Back Better principles to ensure long-term resilience. हमारी ज़मीनात का ज़्यादातर हिस्सा ग्लेशियर पे मुश्तमिल है। यहाँ ज़री ज़मीनात है, लोगों के मेवादार दरख्त हैं, जंगलात है। सैलाब के बाद यहाँ का हालात पहले से बहुत मुख्तलिफ हो गए। ब्रेव प्रोजेक्ट ने इसकी चैनलाइजेशन के हवाले से अपनी सरगर्मियों का आगाज़ किया। कम से कम इस चैनलाइजेशन से लोगों की ज़मीनात बच जाएंगे, मज़ीद दरिया का कटाई से हम महफूज रहेंगे। Biko haya wa mobile yake kwa jihandi tispata ma haya sali kafi spa महफूज होता आइंदो दिक्या वाके आई एक्चुअली पर इसपा बचे बोझम बोइसे ब्रेव प्रोजेक्ट जब हमारे गांव में आया है ना, फिर हमने इधर कमेटियां तैयार की हैं। बस्ती में इलाके को जाके इलाके वालों के साथ डिस्कस की, उन्होंने रास्ता बना कर दिया। अगली दफ़ा अगर सैलाब आएगा, ये रास्ते ऊंचे बने हुए हैं, पानी इसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पिछले दिनों जो फ्लैश फ्लड आया था यहाँ पे, उसकी वजह से हमारे जितने भी यहाँ पे जो पुलें हैं वो सारी बह गई थी, सड़कें हमारी तबाह हो गई थी। तो ऊपर जो हमारी ज़मीनें हैं उसमें हम आलू काश्त करते हैं, गायों के लिए, बैल बकरियों के लिए चारा वहाँ से आता है। ये सारा हमारा निज़ाम मफलूज होकर रह गया था। जब ये पुल हमारा बन गया, सिस्टम हमारा सीधा हो गया, आलू का हमारा फसल ख़राब नहीं हुआ, लोग उसको टाइमली मार्केट तक लेके गए। जब से हमारे यहाँ ब्रेव प्रोजेक्ट आया है तो हमारे सारे मसाइल आसान हो गए हैं। हमारे बच्चे स्कूल के लिए पुल से जाते थे, वो पुल तबाह हो गए। इस वजह से केबल कार लगाई, हमारे बच्चे स्कूल आने और जाने में आसानी हो गई है।
नलका मिलिया असांखे इहो पाणी जो सुख थी वियो असां जाम पंध ॿाहिरि वेंदासीं पाणी भरण हाणे वरी उहो टाइम बची वियो असीं घर टाइम खां अचूं था पोइ वरी असांखे ॿियो ई लेटरियूं मिलियूं इहो पाण असांजो सुख थी वियो न्याणियूं वॾियूं सारियूं ॿाहिरि वेंदियूं होॾां होॾां माजूरनि को उहो वञे After the 2022 and 2024 floods, livestock suffered high mortality due to limited veterinary services. Under the BRAVE project, university-trained community livestock extension workers were placed with district livestock departments and now provide vital care while building their own livelihoods. हमें इन्होंने ट्रेनिंग दी लाइव स्टॉक को कैसे बचाएं, इमरजेंसी में उसको कैसे हम ट्रीटमेंट करें। गांव में हमारी कम्युनिटी में हम अपने जानवरों का खुद ही इलाज करते हैं। ट्रीटमेंट करने के बाद हमें 400-500 रुपये मिल भी जाते हैं। The climate-induced floods caused widespread livelihood losses, affecting both male and female youth and small businesses. The BRAVE project supported their recovery by providing market-driven vocational training for sustainable livelihoods. ट्रेनिंग में हमें सोलर प्लांट लगाना सिखा गया कि हम सोलर प्लांट लगा सकें। हमें टूल किट दी गई और सर्टिफिकेट भी दिया गया। आगे हमारा फ्यूचर प्लान है कि अच्छा सा दुकान लगाएंगे और हम अपना रोज़गार करेंगे। पहले मैं कहीं से सिलाई वगैरह करवाती थी अपने कपड़े दूसरे लोगों से, अब मैं अपने कपड़े और दूसरों के कपड़े भी खुद ही सीती हूँ। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद हमें सर्टिफिकेट, टूल किट, मशीन वगैरह मिली जिससे मैं अपना रोज़गार चला रही हूँ। अपने बहन भाइयों की तालीम में भी मैं उनको सपोर्ट करती हूँ। ब्रेव प्रोजेक्ट है ज़रिया इस इमदाद करोन होय 23 नफरियन मुजारी कोस्ते जिगजग मशीन प्रानी कोस्ते दुकान और सामान प्रानी पर दुकान और सामान इस प्रानी तन कारोबार अजी दोबारा शुरू करता। 2022 और 2024 के सैलाब की वजह से गरीब किसानों का बीज तबाह हो गया और फसल के नुकसानात की वजह से वो काफ़ी मकरूज़ भी हो गए, जिसकी वजह से उनको दोबारा फसल की काश्त के लिए बीज कर्ज पे लेना पड़ता है। ब्रेव प्रोजेक्ट में जो हमने गंदम की बीज दिया, अकबर 19 वैरायटी का नाम है, उसका उगाव 100% था, जबकि जो नॉर्मली जो वहाँ पर वैरायटीज़ पाई जाती हैं उनका उगाव जो होता है 70 से 80% के दरमियान होता है। क्योंकि अगर हम उसकी कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि जर्मिनेशन उसकी ज़्यादा आई है और उसके झाड़ भी बड़ा अच्छा आया है। दूसरा जो सबसे अहम बात है, उसका जो स्पाइक में 70 दाने काउंट किए गए हैं, जबकि दूसरे जो वैरायटीज़ को जब हम देखते हैं तो वो 50 दाने होते हैं उसमें से। ब्रेव प्रोजेक्ट वाले आए, बाण बनाना सिखाया, दवाई बनाई सिखाई, वो बाण दिया, वो हम शहर में काट के वो फसल काट के शहर में ले, हमारे को ज़्यादा मुनाफा मिलता है। जब हमारे सैलाबों में नुकसान होता है ना, उन्हों की भरपाई पूरी हो जाती है। इन्हों की बड़ी मेहरबानी। को धरती फिर बकरी मिलती, उनका फल नंढड़ा भी आहा, मना नंढड़ा बाल दाल को खीर पिला सकते पियूँ, अपनी मन चाह वगैरह जो भी अपनी ज़रूरत पूरी कर सकते पियूँ। ब्रेव ह्यूमैनिटेरियन प्रोजेक्ट के अंदर हमने बकरियां तकसीम किए वाउचर फेयर के थ्रू, जिसमें ख़वातीन का कहना था जब हमने असेसमेंट की तो कि ये एक सबसे अच्छी एक्टिविटी थी हमारे लिए, क्योंकि हमें एक एसेट बिल्डिंग हमारी हुई और हमारी विमेन एम्पावरमेंट में काफ़ी इजाफा हुआ। आने वाले वक्तों में जब इसके बच्चे बड़े होंगे तो वो बकरा ईद के अंदर उसको सेल आउट करेंगे, जिससे उनकी आमदन में इजाफा होगा। Floods destroyed thousands of schools, health facilities and water systems, leaving communities without essential services and at high public health risk. The latrines and hand pumps were constructed on raised platforms using resilient construction practices to protect against future flooding. हमारे वाशरूम थे, लेकिन वो इस हालत में नहीं थे कि हम उसको कहेंगे वो फंक्शनल हालत के अंदर थे। उन्होंने वो हमें बना के दिए और वाशरूम बच्चे बच्चियाँ टीचर सब यूज़ कर रहे हैं, सबके लिए अलग अलग वाशरूम से। सोलर प्लेट मिली, बेसिक जो मसला था ना वो हल हो गया। The solarization of healthcare services and schools have a positive impact. The enrollment and attendance have improved in schools. The good thing is these solar panels are generating clean energy, which is contributing towards reducing carbon emissions and promoting a climate resilient future. And build back better for the flood affected population.
में डायलिसिस यूनिट का प्रॉपर सोलराइजेशन करके दी है, जिस पे हमारे कोई 28 पेशेंट्स रजिस्टर्ड हैं। डेली 10 डायलिसिस सेशंस होते हैं और वो टोटली सोलराइज्ड है, तो डेफिनेटली उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। I am appreciating Project Brave for launching such a vast facility initiative. Brave is helping to safeguard resilience gains and setting pathways to resilient recovery. It is restoring hope and stability. The partnership among FCDO, Government of Pakistan concerned worldwide, and our partners is helping to build resilient communities, advancing the Sustainable Development Goals, SDGs. Together, we are not just rebuilding, we are building back better.